Yes, students, now we have to discuss some more questions of chapter 3. So, if the question of diagrammatic base, then you can do yourself. I just read that question. If some concept is there, then I'll discuss here. So, question first is, does diagrammatic labeled section view of seminiferous tubule of human? No doubt you can do this. Describe the sequence or process of spermatogenesis in humans. That means formation of spermatozoa from the primary spermatocyte, then secondary spermatocyte, spermatid, then spermiogenesis and the complete process. Draw a diagrammatic section view of human seminiferous tubule. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और प्रैक्टिकल एग्जाम में उसमें भी है सिलेबस में. तो डिफरेंट वी हैव टू शो डिफरेंट वी कैन से स्ट्रक्चर्स. एक्सप्लेन द हार्मोनल रेगुलेशन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन. मैंने कल ही बताया था कि LH एंड FSH है, तो LH से L ये लाइडिंग सेल पे काम करेगा, FSH ये सर्टोली सेल पे काम करेगा, फिर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ write the specific location and function of the following: Leyding cells, then Sertoli cell and primary spermatocyte. तो that means ये जो Leyding cell है they are present in the interstitial space of seminiferous tubule. एक ये seminiferous tubule है. ओके, तो that means in seminiferous tubule इसमें ऐसे long cells और that means the large size cell Sertoli cell होगी, उनके साथ क्या होती हैं, that means जम सेल होती हैं. जम सेल फॉर्म द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और आउटसाइड होती है लाइडिंग सेल्स. एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनी टू एसेसरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो देयर आर द प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल. देखो क्या क्या है. सो हेयर प्रोस्टेट ग्लैंड दैट इज सिंगल लार्ज होती है, सेमिनल वेसिकल पेयर में होती है. तो दे सीक्रेट सब्सटेंस जो एल्कलाइन हो एंड ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ और वी कैन से फॉर ट्रांसपोर्ट. तो इफ यू टॉक अबाउट प्रोस्टेट ग्लैंड, ए सिंगल है, सराउंड द यूरेथ्रा, प्रोड्यूस मिल्क की सीक्रेशन है. इसमें सम सब्सटेंस मिलते हैं जैसे लाइक सिट्रिक एसिड है, लिपिड्स हैं एंड सम एंजाइम्स हैं. तो हेल्प करते हैं सीक्रेशन nourishes and activates spermatozoa for the swim. Seminal vesicle पेयर में होती है, secrete mucus and watery alkaline fluid है and contain fructose. और जो fructose है वो मेन शुगर है यहाँ पर, which provide the energy to the sperm for movement. तो ये fructose शुगर है, ये याद रखना है. in NCERT that means सेपरेशन नहीं दिया हुआ है कि what type of substance secreted by prostate gland or seminal vesicle. Where does spermatogenesis occur in human testes? Describe the process of spermatogenesis up to formation of spermatozoa. I think no doubt. Trace the path of spermatozoa from testes up to ejaculatory duct. तो ये पाथ दिखाना हमें सीधा सीधा. That means seminiferous tubule से निकलती है. ओके, कब? when there is a process of spermiation. वो रेटी टेस्टिस में जाएगी, वास एफरेंसिया, देन एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस टू ejaculatory duct में, that means into main urethra में. Okay, when and where does spermatogenesis occur in human male? I think no doubt. Draw a label diagram of human male gamete. Male gamete mean here is talking about sperm. तो sperm की different structures हैं. That mean main इसमें head, then neck, middle piece and tail. Mitochondria, neck में centriole, nucleus, acrosome और tail act as a flagella. Draw the diagram of human male gamete. Okay, mention the function of acrosome in middle piece. Acrosome में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और वो किस में हेल्प करता है? टू पेनिट्रेट द जोना पेलासुडा और फॉर द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. Draw schematic diagram of human sperm and section view of female reproductive system. Now part B. Explain the role of pituitary hormone, pituitary and ovarian hormone during menstrual cycle. अब वी कैन से ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट आर द रोल ऑफ दिस हार्मोन और दैट पर्टिकुलर हार्मोन. तो दैट मीन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट टू हार्मोन FSH एंड LH. FSH फॉलिकुलर, तो इससे फॉलिकल डेवलप होगा,
FSH से, LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन इससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, दैट इज LH सर्ज 14th डे पीक पे। ओवेरियन हार्मोन है मेनली एस्ट्रोजन है एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, दैट मीन्स इट मेनली वी कैन से जो एंडोमेट्रियम है उसको बिल्ड करता है, ओके। एंड प्रोजेस्टेरोन वो कॉर्पस ल्यूटियम है वो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट stages of oogenesis in humans starting from fetal life till its completion. We know that this process is very complex है, fetal life से शुरू होके puberty तक चलता है। तो what are the different changes that we have to do only? When and where are primary oocyte formed in human female? It's a nice question. प्राइमरी oocyte कहाँ बनते हैं, fetal life में। Trace the development of oocyte till ovulation in menstrual cycle. How do gonadotrophin influence the development processes? gonadotrophin सारे प्रोसेस दिखाने ना। gonadotrophin कौन से हैं, दैट मीन्स FSH एंड LH। अभी ऊपर हमने किया इन दोनों का फंक्शन। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ डज गैमेटोजेनेसिस बिगिन इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से, ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में तो फीटल लाइफ से ही शुरू हो जाता है, एंड मेल में फ्रॉम प्यूबर्टी। नेम द ऑर्गन वेयर गैमेटोजेनेसिस गेट कंप्लीटेड इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल ऑर्गन फीमेल रिस्पेक्टिवली। कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो वो होता है टेस्टिस के अंदर, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है, बिकॉज आफ्टर फर्टिलाइजेशन मियोसिस 2 कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इन फेलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में और एम्पुला में। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। म्यूटिक डिवीजन ड्यूरिंग oogenesis इन डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम दैट इन स्पर्मेटोजेनेसिस। दोनों में अलग अलग है, कैसे देखो। इफ यू टॉक अबाउट मियोसिस इन स्पर्म, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इनटू, तो दैट मीन प्राइमरी oogonia से जब सेकेंडरी oogonia बनेगा, देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडी। इससे फर्दर जाके एक और पोलर बॉडी बनेगी। दिस फर्दर कैन डिवाइड और कैन नॉट। तो दैट मीन्स देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम 3 पोलर बॉडी, बट एग कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेगा। तो ये आ गया ना डिफरेंस, यहाँ कितने बने 4, और यहाँ पर कितना बना, सिर्फ एक ही। यहाँ पर डिवीजन क्या थी, इक्वल थी, यहाँ पर डिवीजन क्या है, अनइक्वल, ओके, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल साइज पोलर बॉडी। वाई दिस स्मॉल साइज पोलर बॉडी, 2 इसमें क्या होगा, मैक्सिमम साइटोप्लाज्म आ जाएगा, एंड दैट इज एक्ट एज रिजर्व फूड फॉर द अर्ली वी कैन से क्लीवेज स्टेज, और वी कैन से आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ zygote. Given alongside is the diagram of human by egg by few sperm. Observe the diagram and answer the following questions. सीधी सी बात है, देखो। Compare the fate of sperm shown in the diagram. Sperm आगे जाके क्या, only head part will enter into the we can say ovum और fertilize कर देगा. What is the role of Jana Pelasuda to check the, Jana Pelasuda क्या करता है, to prevent extra entry of sperm or more than one we can say sperm को. तो analyze the changes occurring in the ovum during this processes. क्या changes होंगे, मियोसिस सेकेंड होगा और सिनगेमी होगा. मेंशन व्हाट हेल्प्स इन द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम. कौन हेल्प करता है, एक्रोसोम. स्पेसिफाई द रीजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर इवेंट रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम टेक्स प्लेस. कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में. फेलोपियन ट्यूब दैट मीन्स इन एम्पुला में, दैट इज वाइडर पार्ट, ओके. Describe the stages of oogenesis in human female. Draw a label diagram of human ovum released after ovulation with corona radiata, zona pellucida, ovum and perivitaline space. जो किसके बीच में होता है, ओवम और जोना पेलिसुडा के बीच में. How oogenesis is markedly different from spermatogenesis, already done.
ड्रा सेक्शन व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी एंड लेवल डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेजेस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो गिवन है एनसीईआरटी में, इस तरह का डायग्राम। तो यहाँ पर बाहर क्या होता है, कॉर्टेक्स, इनर इज ए मेड्यूला। इस मेड्यूला में क्या है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है, और बाहर ये फॉलिकुलर डेवलप होंगे। डिस्क्राइब द चेंज दैट अकर इन ओवरीज एंड यूट्रस इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो वो सारे हैं, यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हुए, एंडोमेट्रियम में या ओवरीज में क्या क्या, दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल कैसे डेवलप हो रहा है। एन्यूमरेट द इवेंट्स इन ओवरी ऑफ ए ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज। देखो फॉलिकुलर फेज एज नेम इंडिकेट, फॉलिकुलर मीन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होगा, और ल्यूटियल फेज ये कॉर्पस ल्यूटियम की बात कर रहा है। तो ये होगा आफ्टर ओव्यूलेशन होता है साइज में, जो एंडोमेट्रियम है वो रीजनरेट होती है, उसका प्रोलिफरेट होता है, और सिक्रेशन होता है एल एच एंड एफ एस एच का। If you talk about luteal phase, तो Graafian follicle का remaining part है that is known as corpus luteum, and corpus luteum will secrete a large amount of progesterone. Now, this type of question is frequently asked in exams. अब देखो यहाँ पर, here the given is pituitary level, here the X and Y. Okay, अब यहाँ pituitary की जगह ओवेरी भी हो सकता है, या यहाँ पर यूटेराइन इवेंट भी हो सकता है। अब कुछ नहीं करना आपको, देखो दिस जस्ट the given is pituitary level. We know that from pituitary gland two hormones are released, one is FSH and second is LH. अब आप इस पीक को ध्यान रखना है, this peak is of LH। तो ये जो LH ये किसका है, that means X का। तो X क्या होगा हमारे पास, LH है, and Y that is FSH. We know about the function of both. ओके ये सिंपल क्वेश्चन है रिगार्डिंग। नाउ ये दूसरा देखो, नाउ हियर द ओवेरियन हार्मोन लेवल, वी नो दैट देर आर टू ओवेरियन हार्मोन, वन इज ए एस्ट्रोजन एंड सेकेंड इज ए प्रोजेस्टेरोन। अब देखो दिस लेवल, देर इज नो राइज इन द लेवल ऑफ दिस हार्मोन, दैट मीन्स ये प्रोजेस्टेरोन है, बिकॉज देर इज नो सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ये हो गया प्रोजेस्टेरोन। और देखो यहाँ पर ये पीक पे जा रहा है, बिकॉज देर इज कॉर्पस ल्यूटियम है, तो दैट मीन दिस हार्मोन इज एस्ट्रोजन, और ये जो बिल्कुल पहले नीचे है फिर ये ऊपर आता है, दिस हार्मोन इज प्रोजेस्टेरोन। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम से आया। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। एक्सप्लेन द ओवेरियन एंड यूटेराइन इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। ये भी हो जाएगा, सिंपल है, व्हाट आर द चेंजेस इन देयर। राइट द ड्यूरेशन and event that occur in the ovary and the uterus during follicular and luteal phase of the menstrual cycle। देखो अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फेज है, आपको कैसे डिवाइड करना है। द फर्स्ट दैट मीन्स अबाउट फर्स्ट 2-5 डेज को आप मेंसिस में क्लियर कर दो, देन 6 to 13 फॉलिकुलर फेज, देन 14 कौन सा हो गया, ओव्यूलेटरी, और उसके बाद हो गया ल्यूटियल फेज। Explain the development of secondary oocyte or ovum in human female. No doubt. Name the hormone involved in this process. तो that means LH, FSH, एस्ट्रोजन, ये सारे हैं। Explain the process of fertilization in human female and trace the post-fertilization event in a sequential order up to implantation. देखो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वही है कि कब होगा, जो है ना, पहले सोडा के पास स्पर्म कैसे आएगा, फिर इट विल इंड्यूस द मियोसिस सेकेंड, और फिर पोलर बॉडी बनेगी और सिनगेमी होगा। बट दिस इज द इम्पोर्टेंट हियर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या आएंगे, अप टू इम्प्लांटेशन देखना है। तो दैट मीन हियर दिस इज द जायगोट टू 2 cell, 2 to 4 cell, 8 cell, 8 cell known as morula, 8 to 16, then morula blastula बनाएगा, और blastula get we can say implant in the endometrium, कब, on the 7th day। okay, now explain the event takes place at the time of fertilization of an ovum, वही क्वेश्चन है। trace the development of zygote, again name and draw the label section view of the embryonic stage and get
implanted. Name and draw the label section view of embryonic cells that get implanted. तो जो implanted होती है that is a blastula. तो blastula में हमें पता है here is a trophoblast, then inner cell mass, and this cavity is known as a blastocele. तो ये क्या आ गया हमारे पास ब्लास्टुला. This is the structure of blastula or we can say blastocyst. एक ही बात है. Describe post zygotic events during leading to implantation and placenta formation in humans. पूरा placenta कैसे बनता है. Then function of placenta is very important. तो दोवे होगा that mean mother to fetus and fetus to mother. तो mother to fetus क्या जाएगा, ऑक्सीजन है वो जाएगी मेनली, और दूसरा फूड है ग्लूकोज है मेनली, और वापस क्या आएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट सब्सटेंस. तो इट ऑल्सो एक्ट एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें HP, LHCG और बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है. स्टडी द फॉलोइंग चार्ट, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन ईच स्टेज. जैसे हाइपोथैलेमस यहाँ पर हार्मोन आता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. देन पिट्यूटरी से LH एंड FSH. टेस्टिस से एंड्रोजन और वी कैन से टेस्टोस्टेरोन. Function we can say we have already discussed many times. You also can see here. Describe the role of pituitary and ovarian hormone during menstrual cycle. Already done. Study the flow chart given below. Name the hormones involved in each stage. I hope now you can do this. During the reproductive cycle of human female, when and where and how does a placenta develop? Where, what is the function of placenta during pregnancy? Done. Explain the menstrual phase in human female. Okay, no doubt. In my view, no doubt. If you have doubt, you can ask me later. Explain menstrual cycle human female. Now, this is the very important question. Difference between spermatogenesis and oogenesis. Basic difference, the very first difference, that means एक मेल का दूसरा फीमेल का. The other major difference, spermatid start from the puberty only, और ये embryonic life से start होता है. फिर unequal division इसमें है, इसमें unequal division नहीं है. Formation of only one egg, formation of 4 sperm. तो ऐसे बहुत सारे difference है. Meiosis arrest हो जाती है, इसमें meiosis arrest नहीं होता. That means there are many differences you can do. Name the hormones secreted and write their functions by corpus luteum. No doubt. चलो देख लो इसको थोड़ा सा. Now, corpus luteum secrete 2 hormone, progesterone, estradiol. Estradiol is a estrogen ही है, तो स्टिमुलेट ग्रोथ करता है मेमोरी ग्लैंड की, और HCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है. ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज LH और FSH होंगे. ड्यूरिंग पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही करती है. जब सिग्नल जाएगा. ओके. व्हेन एंड हाउ डज प्लेसेंटा डेवलप. हाउ इज द प्लेसेंटा कनेक्टेड टू एम्ब्रियो. अम्बिलिकल कॉर्ड है. प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सप्लेन. अरेंज द फॉलोइंग हार्मोन्स इन सीक्वेंस ऑफ देयर सीक्रेशन इन प्रेग्नेंट वुमेन. हाँ देखो इस तरह का अच्छा क्वेश्चन है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. यू कैन हैव सच टाइप ऑफ. देखो HCG, LH, FSH रिलेक्शन. अब देखो LH और FSH तो हो गए पहले के. HCG और रिलेक्शन है दैट आर द हार्मोन ऑफ प्लेसेंटा. तो ऑब्वियस सी बात है पहले क्या बनेगा, FSH और LH होंगे, उसके बाद रिलेक्शन होगा. FSH दैट मीन्स फॉलिकल को डेवलप करता है, तो सबसे पहला काम. आफ्टर दैट ओव्यूलेशन करता है, तो उसके बाद में HCG है वो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है. रिलेक्शन का काम है सबसे लास्ट में, वी कैन से एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन. क्या
गिवन बिलो द टीएस ऑफ ह्यूमन ओवरी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इन डायग्राम। ओके, देखो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से शुरू हो जाओ। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी, लास्ट में आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। बस इतना सा सीधे दिखाना है। तो प्राइमरी सेकेंडरी, एंट्रम इज द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। तो चेंजेस इन oocyte वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अप टू फॉर्मेशन ऑफ वी कैन से ग्राफियन फॉलिकल। देन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ we can say ovum surrounded by different sperms, and these are the different phases. अब ये देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। वट वी हैव टू आइडेंटिफाई, दैट मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर। कौन कौन सी आइडेंटिफाई करनी? आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलिस्ट्रेट ओव्यूलेशन एंड मेंशन द स्टेज ऑफ oogenesis that is represent। तो दीज आर द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल। तो ये जैसे प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओव्यूलेशन हो गया, ये कॉर्पस ल्यूटियम है 2, और ये कॉर्पस एल्बिकेंस है। रेफर टू द इलस्ट्रेशन ऑफ द अबव क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर दैट इलस्ट्रेट द कॉर्पस ल्यूटियम एंड नेम। ये सिंपल है रिगार्डिंग डायग्राम ओनली। Human female is not fertile after menopause, where males can produce gamete at any age of puberty। देखो अच्छा क्वेश्चन है। menopause mean that means the we can see oogonia are limited, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। तो आफ्टर दैट एक स्टेज आती है दैट इज मेनोपॉज, दैट मीन्स नो मोर फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और नो मोर ओव्यूलेशन। तो वो कुछ करेंगे नहीं। बट ह्यूमन मेल है प्यूबर्टी टू लेकर डेथ तक वो स्पर्म फॉर्म करते रहते हैं। वट रोल डज पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन प्ले ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड ओव्यूलेटरी फेज? ये सिंपल बताना, बट एलएच और एफएसएस का फंक्शन। गिव द टर्म और रीजन। मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्चुरेशन, दैट इज कंप्लीट वी कैन से न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग एक्सप्लोजन ऑफ द बेबी, ऑक्सीटोसिन मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है स्ट्रॉन्ग। वाई डज जोना पैलेसोडा लेयर ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म? दैट मीन्स टू इंश्योर सिंगल ही न्यूक्लियस का फ्यूजन हो मेल और फीमेल का। स्पर्म कैन नॉट रीच ओवम विदाउट सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं जो लुब्रिकेशन में एल्कलिनिटी प्रोवाइड करवाते हैं, लुब्रिकेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, जैसे फ्रक्टोज है। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। देखो थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है। ऑल कॉपुलेशन डू नॉट लीड फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, जस्ट कम टू द रिप्रोडक्टिव साइकिल। हियर 14th डे है। वी हैव स्टडीड नेचुरल मेथड पीरियोडिक एब्सिटेनेंस। ओके, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर इस डे के आसपास एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? तो दैट मीन्स इफ देर इज ए सेक्सुअल और इंटरकॉर्स in these days, then there would be no fertilization because there is no egg। okay, so these are the सारे हो गए क्या? okay, so now if you have any doubt you can ask me directly in message।